بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارے کبرا آؤ بھائی، بڑے دنوں کے بعد چکر لگایا تم نے۔ رضیہ بیگم حسب عادت تخت پوش پر تکیے سے ٹیک لگائے تسبیح کے دانے گرا رہی تھی کہ اپنی ہمسائی کبرا کو آتا دیکھ کر سیدھی ہو بیٹھی۔ ٹانگیں سمیٹ کر ان کے لیے جگہ بناتے ہوئے انہوں نے کہا، ہاں رضیہ، تمہیں تو پتا ہی ہے کہ جب بڑے بھائی کے گھر جاؤں تو پھر چھٹی مشکل سے ملتی ہے۔ وہ وہیں پر ٹکتے ہوئے بولی، ہے نا بیٹا، ایک کپ کبرا خالہ کے لیے بھی بنا دینا۔ وہ کچن میں چائے بنا رہی تھی اور ان کی آمد سے باخبر ہوتے ہی اس نے چولہے پر پکتی چائے کے سامان میں اضافہ کر دیا تھا۔ اور سناؤ، خیریت سے گئی تھی بھائی کے گھر؟ ہنا کو ہدایت دینے کے بعد وہ دوبارہ ان سے مخاطب ہوئی۔ لبنہ کی بیٹی کی سالگرہ تھی، کافی بڑا پروگرام تھا ان کا، سبھی خاندان والے موجود تھے۔ میری تو طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے سوچا پھر کبھی چلی جاؤں گی۔ فون پر معذرت بھی کرتی تھی، لیکن اگلے دن بھائی اور بھابھی مجھے لینے آ گئے تو مجھے مجبوراً جانا پڑا۔ وہ مسکراتے ہوئے بتا رہی تھی۔ اسی وقت اس کی آمد ہوئی، ٹرے میں 3 کپ سجائے۔ وہ کسی قدر متانت سے چلتی میز کے قریب آ رکی۔ السلام علیکم خالہ، کیسی ہیں؟ چائے سرو کرتے ہوئے خوش اخلاقی سے گویا ہوئی۔ وعلیکم السلام، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، میں ٹھیک ہوں۔ میری بیٹی کیسی ہے؟ اسے دیکھ کر ان کا سر و خون ڈر گیا تھا۔ ان کی اپنی کوئی بیٹی نہیں تھی، اس لیے ہنا کو ہی بیٹی بنا رکھا تھا۔ الحمدللہ، میں بھی فٹ ہوں۔ وہ مسکرائی۔ وہ ماسی نہیں تھی مگر ماں جیسی ہی تھی، ان سے ماں جیسی خوشبو پھوٹا کرتی تھی۔ انہیں کب پکڑا کر وہ وہیں براجمان ہو گئی۔ کہاں تھی اتنے دن آپ؟ اچانک یاد آیا تو مسکراتے لب سمٹ گئے۔ راشد بھائی کے گھر گئی تھی، اس کی پوتی کی سالگرہ پر۔ بتایا تو نہیں آپ نے؟ لہجہ خفا خفا سا تھا۔ ہاں تو جانے کا ارادہ بھی تو نہیں تھا میرا، طبیعت خراب تھی نا، اس لیے بس یوں سمجھ لو کہ زبردستی جانا پڑا۔ انہوں نے پھر وضاحت دی، جب اتنے پیار کرنے والے بہن بھائی ساتھ ہوں تو پھر طبیعت کیوں کر خراب ہو؟ رضیہ بیگم کی آنکھوں میں حسرت بول رہی تھی اور دیکھتے ہی دیکھتے ان میں نمکین پانی بھر گیا۔ ہنا نے اپنی ماں کی آنکھوں میں دیکھا جہاں پر درد ہی درد تھا، تنہا رہ جانے کا درد، کوئی ہمدرد نہ رہ جانے کا درد۔ اس کی آنکھیں بھی ڈبڈبا گئی۔ واہ یہ قسمت، ان کی کوئی بہن تھی نہ بھائی، ماں باپ بھی چل بسے تھے اور بھری دنیا میں ان دونوں کو جھیلنے کے لیے وہ دونوں ماں بیٹی اکیلے رہ گئے تھے۔ جب اس نے ہوش سنبھالا تو اپنے ارد گرد ماں کو دیکھا تھا۔ رفتہ رفتہ اسے سمجھ آ گئی کہ اس کا پورا خاندان صرف اس کی ماں ہی تھی۔ جب وہ دکھی ہوتی تو ان کی گود میں منہ چھپا کر رو لیتی، لیکن ان کے پاس ایسا کوئی کندھا نہیں تھا جس پر سر رکھے وہ سارے آنسو بہا لیتی۔ ہنا، ہنا، اپنا نام سن کر وہ چونکی۔ ہوں، آنسو کو پیتے اس نے خود کو سنبھالا۔ کہاں کھو گئی ہو؟ کب سے بلا رہی ہو؟ انہوں نے ماتھے پر بر ڈالے۔ ارے کہیں نہیں خالہ، آپ بتائیں کیا کہہ رہی تھی؟ وہ ان کی طرف متوجہ ہوئی۔ ایک یہی تو خالہ تھی جن سے وہ دونوں ماں بیٹی دل کا بوجھ ہلکا کر لیا کرتی تھی۔ میں کہہ رہی تھی کہ اگلے مہینے سعدیہ کی بیٹی کی شادی ہے، تو پھر تم چلو گی نا میرے ساتھ؟ نہیں، بھلا میرا وہاں کیا کام؟ اسے تعجب ہوا۔ لو بھائی، لڑکیوں کو شادی میں کیا کام ہوتا ہے؟ انہوں نے بگڑ کر پوچھا۔ چھٹی ملنا مشکل ہے، چائے کا سپ لیتے ہوئے اس نے بتایا۔ کبرا، اتنا کہہ رہی ہے تو چلی جانا۔ رضیہ بیگم اسے قائل کرنے لگی۔ اچھا دیکھوں گی، اس نے ٹالا۔ دراصل وہ نہیں جانا چاہتے تھے، آنے جانے سے ملنے ملانے سے ہی جان پہچان بنتی ہے، اللہ ضرور کوئی راستہ نکالے گا۔ خالہ کبرا نے اس کے گھٹنے پر ہاتھ رکھ کر ایک امید سے کہا، مجھے اب ضرورت نہیں ہے خالہ۔ اس کا لہجہ پتھر سے زیادہ سخت، مگر اب وہ وہاں مزید نہیں بیٹھ سکتی تھی، اس لیے اٹھ کر آ گئی۔ اس کے جاتے ہی رضیہ بیگم رونے لگ گئی۔ تم بھی ہمت ہارو گی تو اسے کون تسلی دے گا؟ انہوں نے اس کے آنسو پہنچے۔ کیسے ہمت نہ ہارو، اگلے مہینے یہ 35 کی ہو جائے گی، اگر مجھے کچھ ہو گیا تو یہ کس کے سہارے جیے گی؟ ان کا دل کٹ رہا تھا۔ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، وہ پروردگار ہے نا، اگر اس نے پیدا کیا ہے تو کوئی جوڑ بھی ضرور بنایا ہوگا۔ انہوں نے پلو سے نم ہوتی آنکھیں رگڑی۔ اچھا، وہ اجازت لیتی چلی گئی۔ ان کے ہاتھ ایک بار پھر دعا کے لیے اٹھ گئے تھے۔ رضیہ ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ رحیم خان نے رضیہ سے شادی اپنے والدین کی مرضی کے خلاف کی تھی، اسی لیے اس کے گھر والوں نے اسے کوئی تعلق نہ رکھا تھا، مگر پھر بھی اس نے رضیہ کو کبھی کسی کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ دنیا کی ہر خوشی اس کی جھولی میں ڈال دی۔ پھر ان خوشیوں میں گھونسنے والا تیسرا کہکا بھی شامل ہو گیا جو ہنا کا تھا۔ اس کا گھر سے معنوں میں جنت بن گیا تھا۔ کہتے ہیں جب نظر لگ جائے تو رونقیں تباہ ہو جاتی ہیں، ہنستے بستے گھر برباد ہو جاتے ہیں۔ ان کے گھر کی خوشیوں کو بھی نظر کھا گئی۔ رضیہ بیگم اجڑ گئی جب اسے اطلاع ملی کہ رحیم خان اس دنیا میں نہیں رہا۔ قدرت نے اچانک ہی اس کے سر پر سے سہاگ کی چادر اتار پھینکی تھی۔ رحیم خان کے گھر والوں کو اس حادثے کی اطلاع دی گئی، مگر وہ ایسے پتھر تھے کہ اس کے جنازے پر بھی نہ آئے۔ نہ جانے کیسے بے حس لوگ تھے۔
रज़िया अपने बेटे हिना के साथ अपने वालिदैन के घर आ गई। वक्त गुजरता गया और अजराइल 2 चक्कर लगाकर उसके माँ बाप की रूह भी खींच गया। हालात से समझौता करती रज़िया अपनी बेटी की खातिर जिंदा रही। कार्ड आया है शादी का। वो खाना खा रही थी जब रज़िया बेगम ने बताया। किसकी शादी है? उसने हैरत से पूछा। सादिया की बेटी जहरा की। उसे कोई दिलचस्पी नहीं थी। कुबरा पूछ रही थी तुम जाओगी शादी पर? उन्होंने उससे पूछा। अम्मी प्लीज आप मना कर दे उन्हें, उनके रिश्तेदारों की शादी में मेरा क्या काम। वो बुरी तरह से चिढ़ गई। कुबरा खाला की भांजी की बेटी की शादी में भला उसके जाने की क्या तुक। वो इसरार कर रही है। सुबह भी कह रही थी 1-2 दिन की तो बात है, चली जाओ। वो ठहरे हुए लहजे में बोली, अच्छा देखूंगी। वो बेजार हुई कि क्या मुसीबत गले पड़ गई थी। परसों जाना है उसने, उन्होंने इतलाह दी। कल हेड से बात कर लेना। उनकी हिदायत पर मूड के साथ साथ खाने का भी सत्यानाश हो गया। जमाने के सर्दो गर्म सहकर रज़िया ने हिना की परवरिश की और उसकी तरबियत में कोई कसर नहीं छोड़ी। माँ बाप का छोड़ा हुआ तरका उसके लिए नाकाफी था, लिहाजा एक स्कूल में मुलाजमत करके उसने हिना को हर आसाइश दी। हिना के लिए स्कूल से कॉलेज तक का सफर कठिन था, लेकिन उसके बाद भी वो अपनी तालीम के अखराजात के लिए मोहल्ले के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी। एमफिल करने के बाद वो स्कूल में टीचर लग गई और साथ ही रज़िया बेगम के इख्तलाफ के बावजूद थी। आ रही हो ना तुम फिर? खाला ने छूटते ही पूछा। जी, वो बेदिली से जवाब दिया गया। अच्छे से खूबसूरत से 4-5 जोड़े रख लेना। उनके मशवरे पर उसका मुंह खुल गया। 4-5 क्यों? हाँ तो इतनी आसानी से वो लोग मुझे वापस कहाँ आने देंगे? और फिर तुम भी तो मेरे साथ ही आओगी ना। उन्होंने बात खोली तो वो हक्का बक्का रह गए। उनके इस प्लान से तो वो वाकिफ ही ना थी। फिर रहने दे खाला, मैं नहीं जा रही, मुझे इतनी छुट्टियों की परमिशन नहीं है। उसने हाथ जोड़ लिए। अरे मजाक कर रही हूँ पगली, तुझे तो बस बहाना चाहिए न जाने का। वो हंसने लगी तो उन्होंने भी इत्मीनान का सांस लिया। अगले दिन वो दोनों ट्रेन में बैठी अपनी मंजिल की तरफ रवाना थी। वो 12वीं जमात में थी जब उसके लिए पहला रिश्ता आया था। वो जो भी था उम्र में उससे 3 गुना बड़ा था, इसलिए रज़िया बेगम ने इनकार कर दिया। फिर 3 साल बाद जो रिश्ता आया वो उन्हें बहुत पसंद आया। लड़का भी अच्छा था और उसके घर वाले भी। हिना उस वक्त मास्टर्स कर रही थी। जब हर तरह से तसल्ली हो गई तो उन्होंने हाँ कर दी। कुछ माह बाद लड़के वाले शादी पर जोर देने लगे। रज़िया ने हिना के मास्टर्स मुकम्मल होने तक वक्त मांगा, मगर उन्होंने साफ इनकार कर दिया, बल्कि रिश्ता ही तोड़ गए। इस बात ने उसे खासा डिस्टर्ब कर दिया था, मगर आहिस्ता आहिस्ता वो फिर से पढ़ाई में मगन हो गई। तालीम मुकम्मल होने के बाद जब एक लम्हे तक का अरसा उसका रिश्ता न हुआ तो उसने तस्वीर रिश्ते वाली को औरत को दे दी। फिर जो रिश्ते आए उनमें से उसको कुछ पसंद नहीं आया और कुछ अच्छे नहीं होंगे। कोई उससे बड़ा था तो कोई उसे बड़ा कहता। 2 माह पहले ही उसने आंटी रज़िया से अपनी तस्वीर ये कहकर वापस ले ली थी कि अब शादी नहीं करनी। रज़िया बेगम उसके रिश्ते को लेकर हमा वक्त परेशान रहती थी। उसके लिए नेक हमसफर और अच्छे नसीब की तलबगार थी, लेकिन उसके सर रवैये ने उन्हें गमज़दा कर दिया था। ताहम वो अल्लाह से उम्मीद लगाए बैठी थी। उनकी जुबान 24 घंटे अल्लाह से फरियाद करती, आंखें खुश्क ही न होती, हाथ बारगाह इलाही में उठ उठ कर थकते ही नहीं थे। लेकिन हिना वो थक चुकी थी, बेजार हो गई थी अपनी जिंदगी से। अगर मौत मांगने की इजाजत होती तो हर नमाज के बाद मांगती। काश खुदकुशी हलाल होती। आखिर वो क्या करे, कहाँ जाए, कैसे अपने नसीब बदले। अपनी माँ की आंखों में आंसू से अब देखे नहीं जा रहे थे। बारहा उसने उन्हें समझाया कि अब बस कर दें, ना रोया करें, जिंदगी ही है ना, गुजर जाएगी। तन्हा जिएगी तो क्या हो जाएगा, मरना भी तो तन्हा है, कब्र में भी तो तन्हा ही उतरना है, फिर गम कैसा। एक दिन तो थकन उतारने में ही गुजर गया। अच्छी भली रूटीन का बेड़ा गर्क कर दिया था उस शादी ने। वो पूरे 4 दिन लगा कर आई थी। यूनिवर्सिटी से भी छुट्टियां हो गई थी। इतनी गैर जिम्मेदार तो वो कभी नहीं रही थी, मगर खाला की जिद। बहरहाल शादी में जाने से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सिर्फ उन लोगों से मसला था जो उसे देखकर आपस में सरगोशियां करने लगते थे। उस पर उठती कई नजरें उसकी बढ़ती उम्र के तस्करे करती, जुबानों से हमेशा कंफ्यूज कर दिया करती थी। यही वजह थी कि वो शादी या किसी भी ऐसी तकरीब में जाने से गुरेज करती थी जहाँ लोगों की बड़ी तादाद मौजूद हो। उसने अपने हालात से समझौता कर लिया था, मगर दुनिया से एहसास कमतरी में मुब्तला रखती थी। वो लोगों को यकीन दिलाने से कासिर थी कि अब उसे किसी मर्द के सहारे की जरूरत नहीं। मैं बात करूंगी उससे, उसने रज़िया बेगम को यही कहते सुना। फिर कुबरा खाला उनके कान में खुसर फुसर करने लगी। वो बाहर आई तो उसे देखकर खामोश हो गई। खैर, इनकी कोई पर्सनल बात होगी, ये सोचकर उसने उनके दरमियान बैठना मुनासिब न समझा। हिना, इधर आओ, बात करनी है तुमसे। उसके जाने के बाद रज़िया बेगम ने उसे अपने पास बुलाया। जी बेटा, वो जहरा की सास अपने बड़े बेटे के लिए कल तुम्हें देखने आ रही है। क्यों देखने आ रही है? कोई चीज हो, कोई शो पीस हो जिसका दिल करता है मुझे देखने आ जाता है, पसंद नहीं आती तो छोड़कर चला जाता है।
आप ही बताएं क्या हमने। वो उन पर चढ़ दौड़े थे। जिंदगी के कई साल उसने खुद को दूसरों के लिए संवारा था। कभी कोई देखने आ रहा तो कभी कोई। सब उसका नाम और काम पूछते। कुछ औरतें से ऐसे देखती जैसे बाजार से कोई मशीन खरीदते वक्त उसकी जांच पड़ताल की जाती है। मेरे कहने का मतलब है कि तुम्हारा रिश्ता लेकर आ रही है। उन्होंने बात को संभालना चाहा। आपने उनको नहीं बताया कि मुझे अब शादी नहीं करनी? ऐसा क्यों कह रही हो इना? सारी जिंदगी पड़ी है अभी, तन्हा कैसे गुजारोगी? वैसे ही जैसे 35 साल गुजारे हैं। गुस्से से इसका चेहरा टिमटिमा रहा था। मैंने हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहना। मैंने कौन सा हमेशा रहना है? वो लोग भी होते हैं जो 40 साल भी मुश्किल से जिंदा रहते हैं। उसकी आंखों में खून उतर आया। हिना, वो दिल पर हाथ रख के उसे फटी आंखों से देखती रही, जबकि उसने वहां पर रुकना गवारा न किया। अगले दिन कुबरा खाला ने भी उसे समझाया, मगर वो एक न मानी। शाम को जो रिश्ते के लिए आई खवातीन, उसने उनसे मिलने से इनकार कर दिया। माफ कीजिएगा बहन जी, मगर मेरी बेटी राजी नहीं है। वो शादी नहीं करना चाहती। उन्होंने उनसे माजरत कर ली। कोई बात नहीं बहन, लेकिन आपको उसे समझाना चाहिए कि उसने गलत फैसला लिया है। उनकी बात पर वो खामोश हो गई। जब आपकी बेटी मान जाए तो मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि उसे तो बहू मैं ही बनाऊंगी। उनकी बात पर वो फकत मुस्कुरा कर रह गई। निखत बेगम के 2 बेटे थे, शहजाद और फवाद। शहजाद बड़ा था और फवाद छोटा। हार्ट अटैक होने पर अहमद अली अपनी बीवी को बेटू के सहारे छोड़ते खुद इस दारे फानी को खैरबाद कह गए थे। शहजाद ने उस नाजुक मौके पर बड़े बेटे का किरदार अदा करते हुए माँ और भाई को संभाल लिया। अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए उसने दिन रात मेहनत की और अपनी जात को अक्सर फरामोश किए छोटे भाई का मुस्तकबिल संवारने लगा। उसकी अनथक मेहनत रंग लाई और कारोबार इस कदर वसी हो गया कि बैरून मुल्क में भी उसकी शाखें फैल गई। फवाद पढ़ाई मुकम्मल होने के बाद भाई का पूरा साथ देने लगा। निखत बेगम अपने बच्चों की इस कदर मेहनत और कामयाबी पर खुश थी। ऑस्ट्रेलिया और दीगर ममालिक में जो बिजनेस ब्रांचेस थी, उन्हें शहजाद ने हैंडल कर रखा था, जबकि पाकिस्तानी ब्रांच को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी फवाद पर थी। फवाद दिन भर का थका रात को कुछ वक्त माँ के साथ गुजारता, जबकि शहजाद ने खुद को इतना मसरूफ रखा था कि कभी कभार ही फोन पर बात किया करता। उन्होंने बारहा शहजाद की शादी के टॉपिक पर बात की, मगर वो ये कहकर टाल देता कि शादी करने का टाइम ही कहाँ है मेरे पास। वो जब भी पाकिस्तान आता वो उससे इसी टॉपिक पर बात करती, मगर वो किसी तो राजी न होता। निखत बेगम तनहा कुर्ती रहती थी। घर में कामकाज के लिए नौकर चाकर मौजूद थे। गैर उन्हें हर तरह का आराम मुयस्सर था, लेकिन सुकून की कमी उन्हें रुला दिया करती थी। वो सारा दिन रोती रहती, तन्हाई में काट खाती थी। उन्हें शिद्दत से बहू और पोते पोतियों की ख्वाहिश थी, जिसे शहजाद ने पूरा करने से साफ इनकार कर दिया था। फवाद को भी ये जानकर बहुत दुख हुआ था कि उसका भाई सारी जिंदगी शादी का इरादा नहीं रखता, हालांकि वो 40 से ऊपर का हो चुका था। माँ का ख्याल करते शहजाद ने बड़े भाई होने का रोक जमाकर फवाद को शादी पर राजी कर लिया और यूं उसकी निस्बत सादिया की बेटी जहरा से तय पा गई। भाई की शादी में शिरकत करने के लिए वो 1 हफ्ते के टूर पर पाकिस्तान आया था। पूरे 2 साल बाद उसे सामने देखकर निखत बेगम खुशी से रो पड़ी। उनके सुख की खातिर उनका अजान से प्यारा बेटा बिजनेस में ऐसा उलझा कि फिर अपना आप ही भूल बैठा। फवाद की शादी बड़ी धूमधाम से हुई। शहजाद का दिल उस शादी में शिरकत करने वाली माही जबीन पर आ गया। वो सारा वक्त उसे देखता रहा। उसे लगा वो आया ही पाकिस्तान उसे देखने के लिए था। उसे हैरत हुई कि पूरी दुनिया घूम चुका था, हजारों लड़कियों से मिल चुका था। सैकड़ों उसके दफ्तर में काम करने वाली मगरबी हसीन लड़कियां थी जो खुद उसे प्रपोज कर चुकी थी, लेकिन उसका अपना दिल फिदा हुआ था मशरकी हुस्न पर। वो बहुत गौर से उस लड़की की हरकत को नोट कर रहा था, मगर उस परी पैकर ने एक बार भी नजर उठाकर उसे देखना गवारा नहीं किया। इर्द गिर्द के माहौल से बेनियाज वो किसी और ही दुनिया में गुम थी। उसने महसूस किया कि या तो उस शादी में जबरदस्ती लाई गई है या फिर लोगों को फेस करने से डरती थी। शादी खत्म होने पर उसने बिला झिझक निखत बेगम से बात की तो बेटे की बात पर खिल उठी। उन्हें जी जान से वो लड़की पसंद थी। माह रमजान का चांद नजर आ गया था। हर रूह सरशार हो गई थी। मुरझाए हुए गुलाबों की तरह खिल गए थे। टूटे दिलों को करार आ गया था। वो आज भी काफी खुश थी। यूनिवर्सिटी की टाइमिंग कम हुई तो उसने सेकंड टाइम मदरसे में कुरान शुरू कर लिया। शाम में नमाज तरावी का इत्माम और फिर तहज्जुद के बाद सहरी की तैयारी। ये वो लम्हे थे जिनका कोई मोल नहीं था। हर तरफ रौनकें थी, बहारी बहार थी जिसने सबको निखार दिया था। वो सो रही थी जब गेट पर बेल बजी। अम्मी आ गई शायद। वो कसरमंदी से बेड से उठी और दुपट्टा लापरवाही से गले में डालते बाहर आई। गेट खोला तो कतन अजनबी शख्स सामने खड़ा था। अस्सलाम वालेकुम, उसने मुस्कुराकर सलामती भेजी। वालेकुम अस्सलाम। नींद से बोझल सुर्ख डोरे वाली स्याह आंखें उस अजनबी को देखकर कितने परेशान लगती थी। मुझे रजिया आंटी से मिलना है। एक तहरानी नजर उसके सरापे पर डालते उसकी मुस्कुराहट मजीद गहरी हुई। अम्मी घर पर नहीं है। उसे इस कदर दिलचस्पी से देखता पाकर उसकी पेशानी पर सलवटें पड़ गई और चेहरे पर नागवारियत उभरी। गले में झूलते दुपट्टे का एक पल्लू खींचकर उसने सर पर टिकाया। कब तक आएंगी? वो निगाह फेर गया।
कुछ ही देर में आ जाएंगी। वो सर झुकाए बोली, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? जी नहीं। उसने सहूलियत से इनकार करते हुए गेट बंद कर दिया। पता नहीं कहाँ से चले आते हैं मुंह उठाकर। खौफ से बड़बड़ाते हुए एक बार फिर सोने चली गई। धड़ 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 वो उठ बैठी। बल बजाने के साथ साथ कोई गेट को भी बुरी तरह पीट रहा था। आ रही हूँ, उसने वहीं से आवाज लगाई। फिर फुर्ती से चप्पल और रस्ते गेट की तरफ भागी। आज उन्होंने वाकई इज्जत कर देनी थी। कहाँ थी तुम? गेट खोलते ही रजिया बेगम का तपा हुआ चेहरा नजर आया। वो सो रही थी। पता नहीं कौन से गधे घोड़े बेचकर सोती हो, सर पर कोई ढोल भी बजाए तो मजा आ ट्रस से मौसम। वो उनके लताड़ने पर हक्का बक्का सी उन्हें देख रही थी कि अंदर आने वाले शख्स की शरीर से मुस्कुराहटों से खजल कर दिया। उसके सामने ही उसके दिल ने दुहाई दी। उन्होंने खामखा उस शख्स के सामने ही इतना डांट दिया था। वो एक बार फिर से दुपट्टा अच्छे से ओढ़ने लगी। आओ बेटा अंदर आओ। अम्मा ने प्यार से उससे पुचकारा। बच्चा भाई धूप में खड़ा है और तुम अंदर खाते खरगोश के मजे ले रही हो। दरवाजा तो खोल देती। खोला तो था और ये भी बताया था कि आप घर पर नहीं है। एक गैर शख्स के सामने इतनी इज्जत अफजाई पर उसका चेहरा टमाटर की तरह लाल हो रहा था। हाय मतलब वो अभी कुछ कह रही थी कि शहजाद ने बोलकर उन्हें चुप करवा दिया। छोड़ो ना आंटी, वैसे भी गैर आदमी को घर में आने की इजाजत कौन देता है? गलती मेरी है, मुझे आप लोग को इन्फॉर्म करके आना चाहिए था। अरे नहीं बेटा, तुम्हारा अपना घर है, जब चाहो आ सकते हो। शुक्रिया आंटी। हिना कहाँ जा रही हो? उसे जाता देखकर उन्होंने टोका। कमरे में, उसने लापरवाही से कहा। इनसे तो मिलो, ये शहजाद है, कुबरा खाला की भांजी की जो बेटी है ना जहरा, ये उनकी जेठ है। उन्होंने बज़ाहिर बेनियाज खड़े शख्स की तरफ इशारा करते उसकी तवज्जो मबजूल करवाई और साथ ही घोड़ियों से भी नवाज डाला। अस्सलाम वालेकुम, उसने स्पार्क लहजे में कहा। वालेकुम अस्सलाम, आप बैठे, मैं पानी लेकर आती हूँ। गर्मी की शिद्दत से उसका सुर्ख होता चेहरा देखकर हिना ने कहा, रहने दीजिए, मेरा रोजा है। उसने उसे जाने से रोका। हिना को तरस आया कि बेचारा इतनी देर से धूप में भी खड़ा रहा और रोजे के साथ भी। वो वहीं बैठ गई। और बेटा घर में सब कैसे हैं? उन्होंने पूछा। जी अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक ठाक है। हिना की बंद होती आंखों ने उसे वहां बैठने पर मजबूर कर दिया था। कोई बहुत देर तक उसे ज्यादा देखता रहा। तबीयत ठीक है तुम्हारी? रजिया बेगम सब्जी काट रही थी जब वो उनके पास बैठी। उसकी वीरान आंखें देखकर वो बेचैन हुई। वो नोट कर रही थी कि कुछ दिनों से उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। हाँ, आपने जगाया नहीं मुझे। लहजे में नींद का खुमार शामिल था। पहले तो तुम इतना नहीं सोती। उन्होंने पुरसोच नजरें उसके चेहरे पर गाड़ी। दरअसल 2-3 रातों से मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने सहरी में नींद की गोली खा ली थी। उसने सादगी से कहा। वो चले गए? वो अजनबी याद आया तो पूछ लिया। नहीं, मैंने नहीं जाने दिया, कुछ देर की तो बात है। अफ्तार के बाद इसने वैसे ही चले जाना है। कह रहा था कि होटल में रह लूंगा, लेकिन मैंने साफ मना कर दिया। नमाज पर नहीं गया है, आता ही होगा। आपने मुझे नमाज के लिए नहीं जगाया? उसे शर्मिंदगी हुई। ज़ोहर का वक्त हो गया था। जगाया था लेकिन तुम गहरी नींद में थी। लो आ गया शहजाद। उनका लहजा एकदम हशाश बशाश हो गया। वो भी उनके साथ आकर बैठ गया। लगता है आपको मेरा आना पसंद नहीं आया। वो बर्दाश्त उसकी आंखों में झांक कर उसके सते हुए चेहरे को देखकर मुस्कुराया। उसे एकदम शर्मिंदगी का एहसास हुआ। वो जब से आया वो सो ही रही थी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। उसने मुस्कुराने की नाकाम कोशिश की। अब ठीक है? वो शख्स बला का चेहरा शनास था। उसे यूं सुस्त देखकर पूछ बैठा। जी, मैं नमाज पढ़ लूं। वो सर धीरे से हिलाती उठ गई। उसकी नजरों ने एक बार फिर कमरे तक उसका पीछा किया था। आंटी, मामा पूछ रही थी कि वो आपसे मिलने कब आए। उसने पूछा तो रजिया बेगम का चेहरा पल भर में मुरझा गया। हमारे घर के दरवाजे हमेशा खुले हैं बेटा। उनका लहजा भर आ गया। आंटी, मैं रोज रोज नहीं आ सकता, मेरे पास इतना वक्त नहीं होता। मैं आज भी मुश्किल से वक्त निकाल कर यहाँ आया हूँ। जो भी जवाब है मुझे दे दें प्लीज। बेटा तुम इनकार ही समझो, उन्होंने नम लहजे में कहा। क्यों आंटी, क्या कमी है मुझ में? वो उलझ गया। अंदर बहुत कुछ टूटा था। कोई कमी नहीं है, बस मैं उसके जिद के आगे मजबूर हूँ। दुपट्टे से भीगी पलकें साफ करते हुए कहा। अगर आपको बुरा नहीं लगे तो मैं बात करूं? मैं एक बार खुद कोशिश करना चाहता था। हाँ, उसे इजाजत देते हुए सर झुका गई। मैं कुछ मदद करूं? और रात के खाने की तैयारी में बुरी तरह गर्क थी जब अचानक ही उसकी आमद हुई। नहीं, मैं कर लूंगी। वो पजल सी हो गई और मुसलसल उसकी हकालत सकनात पर नजर रखे हुए था। उसकी मौजूदगी में वो ठीक से काम नहीं कर पा रही थी। आप कमरे में चले जाएं, यहाँ गर्मी है। कनखियों से उसे देखते उसने कहा था। ये आपको सुबह सोचना चाहिए था। सॉरी, उसे याद आया कि अंदर आने वाली बात पर उसने किस तरह दरवाजा बंद किया था। कोई बात नहीं, उसे लगा वो अब चला जाएगा। मगर मुझे आपसे कुछ कहना है। जी फरमाइए। लहजा तल हुआ। खामखाफ रहने वाले लोग उसे पसंद नहीं थे। आपको पता है मैं यहाँ क्यों आया हूँ? बड़ा ही अजीब सवाल था। मुझे कैसे पता हो सकता है? उसने आबरू उचकाए।
हाँ ये भी है, वैसे मेरी उम्र 42 साल है। उसने मुड़कर देखा। ये शख्स कहीं से 42 साल का नहीं लगता था, वैसे ही जैसे वो 35 साल की नहीं लगती थी। ताहम उसने हैरानकुन तासुरात पर काबू पा लिया और दोबारा काम में मसरूफ हो गई। मैं ऑस्ट्रेलिया में रहता हूँ, वहाँ मेरा अपना बिजनेस है। पाकिस्तान बहुत कम आता हूँ मामा की वजह से। वो चाहती हैं कि मैं शादी कर लूँ और मैं शादी करना नहीं चाहता, बस इसीलिए पाकिस्तान नहीं आता था। मैं शादी, बीवी, बच्चे, इन सब बातों से बहुत एलर्जिक था। ये रिश्ते मुझे बोझ लगते थे, मैं बस आज़ाद रहना। वो अपनी ही धुन में बोले जा रहा था कि उसने टोक दिया। लेकिन आप ये सब मुझे क्यों बता रहे हैं? वो उसकी बात काटते हुए बेचारे वो उलझी नजरों से उसे देखने लगी। क्योंकि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, बेधड़क के उसने कहा तो हिना के तो जैसे जान ही निकल गई। जुबान, गंग, बदन मुंजमद और साफ शल हो गए थे। उथल पथल होते धड़कनों को संभालते और तेज से मुट्ठियां भीजते। उसने फरार होना चाहा तो उसकी राह में दीवार की माने घायल हो गया। रास्ता छोड़े प्लीज। उसने जैसे ही उसकी बात सुनी ही नहीं थी, इसलिए बोलता चला गया। मैंने आपको फवाद की शादी में देखा था तो सोचा बाकी जिंदगी आपके नाम कर देनी चाहिए। पहली बार एहसास हुआ कि अगर आप जैसी बीवी होगी तो यकीनन बच्चे बोझ नहीं लगेंगे। वो उसके शरीर लहजे पर इसके बरक्स वो स्पार्ट चेहरा लिए खड़ी रही। आज तक उसकी जिंदगी में कोई ऐसा नहीं आया था जिसने उसे हक जताकर बात की हो, मगर उसने हाथ दीवार पर रखते उसकी ये कोशिश भी नाकाम बना दी। क्या आप मुझसे शादी करेंगी? बेतकल्लफी की सारी दीवारें गिराता वो उससे कह रहा था। 3-3 घंटे एक टॉपिक पर लेक्चर देने वाली की जुबान उस वक्त तालू से चिपक गई थी। कल मामा आएगी, मुझे उम्मीद है आप इनकार नहीं करेंगी। वो लंबे लंबे डग भरता बाहर चला गया था। वो अब तक उसके बदन से उठने वाली मशहूर कौन खुशबू के ज़ेरे असर खड़ी थी। उसने सर उठाया तो एक आंसू पलकों की बाढ़ में लगा हुआ था। रात का खाना उसने अपने कमरे में खाया था। फिर टहलते वो खिड़की के पास आ खड़ी हुई। बाहर का मंजर कितना अजीब था। अम्मी उसे न जाने क्या बातें कर रही थी, जबकि वो भी मुस्कुराते हुए सर हिला रहा था और जवाबन कुछ कह भी रहा था। जाते जाते उसने दिलफरेब मुस्कुराहट उसकी तरफ भी उछाली थी। उसने तेजी से पर्दा गिराया और बेड पर लेटकर आंखें मूंदे नींद की तमन्ना करने लगी। आज निकट बेगम आई थी, बड़ी चाह से तुम्हारा रिश्ता मांग रही थी। सच पूछो तो मुझे शहजाद बहुत पसंद आया है, बड़ा प्यारा बच्चा है। मैंने हाँ कर दी है। उनकी आखिरी बात पर उसने उन्हें चौंक कर देखा। वो यूनिवर्सिटी से थकी हुई आई थी और फ्रेश होकर लेटने लगी थी कि रजिया बेगम उसके पास आ बैठी। 2-4 बातें करने के बाद उन्होंने मतलब की बात की तो वो बेचैन सी हो गई, लेकिन खिलाफ मामूल खामोश रही। तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? उन्होंने उसका हाथ थामते हुए पूछा। हिना ने देखा उनका चेहरा खुशी से धमक रहा था। वो धीरे में सर झुकाते नफी में सर हिला गई। उन्होंने आगे बढ़कर उसकी पेशानी चूम ली। 2 दिन बाद ईद थी और ईद के दूसरे रोज उसका निकाह। दिन कम थे और काम ज्यादा। निकट बेगम तकरीबन रोज ही उसे अपने साथ ले जाती, कभी ज्वेलर के पास तो कभी डिजाइनर के पास। बाजारों के चक्कर लगा लगा कर वो खुद घन चक्कर बन गई। आखिर वो दिन भी आ गया जिसको सबको इंतजार था। रजिया बेगम की खुशी दी इतनी थी उनके पांव जमीन पर नहीं पड़ते थे। वो बार बार आसमान की तरफ सर उठाकर परवरदिगार आलम का शुक्रिया अदा कर रही थी। दुल्हन बनी हिना को शहजाद के पहलू में बिठा दिया गया। धुल्लापे का रूप जो उस पर चढ़ा था उसे निगत बेगम भी देखकर सदके वाली जा रही थी। शहजाद पर उसकी नजर पड़ी तो वो भी मबहूत रह गया। कुरान के सामने ढेरों दुआएं देते रजिया बेगम ने उसे घर से रुखसत किया। निगत बेगम के आंगन में तो गोया चांद उतर आया था। तमाम रिश्तेदार अश कर रहे थे। माशाअल्लाह, दुल्हन चांद का टुकड़ा है। उसके पास खड़ी किसी औरत ने उस पर कमेंट किया था। उसे शहजाद के रूम में बिठा दिया गया। वो मुतहैयर से उस कमरे को देखे जा रही थी जो किसी ताजमहल से कम नहीं था। इतना आलीशान कमरा उसने पूरी हयात में ही देखा था। अल्लाह ताला ने उसकी माँ की दुआओं को रद्द नहीं किया था। वो बेड काम से टेक लगाए पल के मौन गए। ज़िस्त के उस लंबे सफर ने उसे थका दिया था। उसके पैरों में छाले पड़ गए थे, न जाने वो कब से चल रही थी। अस्सलामुअलैकुम। उसके हड़बड़ाकर आंखें खोलने पर वो मुस्कुराया। वालेकुम अस्सलाम, लगता है आप काफी थकी हैं। उसके पास टिकते हुए उसने कहा तो वो धीमे से सर हिला गई। आंटी ने मुझे बताया था कि आप थक गई हैं। वो हैरान हुई थी इस बात पर। आपको मालूम है कि जिंदगी में किस चीज की देर ने आपको थका दिया? उसके पूछने पर वो नासमझी से उसे देखी गई। कौन की? सिर्फ खून की देर ने। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कौन यानी हो जा और फयाकून, बस वो हो जाती है। वो बात को खोल रहा था। उसने देर से दिया लेकिन क्या दुरुस्त नहीं दिया? वो बराह रास्त आंखों में झांक कर पूछ रहा था। आप मायूस थी, हालांकि जिसका रब हो उसे मायूस नहीं होना चाहिए। या ये कहना ज्यादा बेहतर होगा कि आप मजबूर हो गई थी कि आपको एक मर्द के सहारे की जरूरत नहीं रही। लेकिन जब वो कौन कह रहा था तो आप क्यों नहीं मान रही थी? मेरे ख्याल में आपको एक शख्स के साथ जिंदगी गुजारने से इनकार नहीं करना चाहिए जिसकी पसली से आपको बनाया गया था। और बिना पलक झपकाए उस जादूगर को देख रही थी जो उसे अपने लफ्जों के जाल में फंसा रहा था। मैं भी शादी के रिश्ते के खिलाफ था, लेकिन फिर आपको देखते मैं ये खुद को यकीन दिलाने में कामयाब हो गया कि औरत के बगैर जिंदगी गुजारने वाले मर्द बेवकूफ होते हैं। मुस्कुराया था। अब कुछ कहेंगी नहीं? क्या कहूँ? उसके खून ने मुझे बोलने के काबिल नहीं छोड़ा।
वो धीरे से सर झुका गई। अगर आप ज्यादा थक गई हैं तो सर रखने के लिए कंधा हाजिर है। उसका शरारती लबो लहजा उसके चेहरे पर मुस्कुराहट के रंग बिखेर गया। क्या आपको नहीं लगता कि यह सर मुझे पहले सजदे में रखना चाहिए? यकीनन। बेड से उतरते उसने अपना मजबूत हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। वो अपना दायां हाथ उसके हाथ में देकर भारी भरकम लहका संभालते नीचे उतरी। और दोनों अपने मसल्ले पर हाथ बांधे अपने रब का शुक्र अदा कर रहे थे, जिसने देर से ही सही मगर कुन कहकर उनकी जिंदगी की कठिन शाहराह पर तन्हा नहीं रहने दिया था। हमारी वीडियोस अगर आपको पसंद आ रही हैं तो ज़रूर लाइक कीजिए, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए। उसके साथ साथ बेल आइकॉन पर भी लाजमी क्लिक कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। अल्लाह हाफिज।